welcome to the Mastical channel. Today we are going to discuss about Class 6 NCERT Maths Chapter 1 Knowing Hours Number. In this video we are going to discuss about the word problems. So let us start with this word problem. What is asked here? It is said that in a book exhibition which was held for the 4 days in a school, the number of tickets sold at the counter on the first day was 1094, in the second day was 1812, in the third day was 2050, and the final day was 2751. We have to find the total number of tickets sold. So, the number of tickets sold on the first day was 1094, tickets sold on the second day was 1812, and the number of tickets sold on the third day was 2050, and tickets sold on the final day was 2751. So the total number of tickets sold on all the 4 days is the sum of all these 4 tickets, which is 7707. Let us discuss this question number 2. Here it is asked that Shekhar is a famous cricket player and he has scored 6,980 runs in a test matches. He wishes to complete 10,000 runs. मतलब कि शेखर जो हैं उनकी विश क्या है 10,000 रन्स को विन करने की, कंप्लीट करने की. बट टिल नाउ उन्होंने 6,980 रन्स को इन्होंने स्कोर किया है. सो हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड? और इनको कंप्लीट करने के लिए टारगेट जो कि 10,000 का है, इनको कितने मोर रन्स चाहिए हैं? राइट नाउ ही हैज जस्ट स्कोर्ड 6,980 रन्स. Let's start the solution. Now, Shekhar has scored 6,980 runs. He wishes to complete 10,000 runs. Therefore, the total number of runs he needed to be scored is 10,000 minus 600, 980. This is 302. Let's discuss this question. In an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes. Means, जो successful candidate था उसको मिला था 5,77,500 वोट्स और उसके नियरेस्ट राइवल को कितने वोट्स मिलते हैं? 3,48,700. So now we have to find by what margin did the successful candidate win the election. Means जो successful candidate है जिसको मिलता है वोट्स 5,77,500, तो वो कितने नंबर ऑफ वोट से सक्सेस हासिल करता है? By what number of votes did the successful candidates win the election? So now see the solution part. Now let's see the solution. Number of votes which the successful candidate has registered, this is 5,77,500, and number of votes secured by his nearest rival, this is 3,48,700. Therefore the margin of votes required to win the election will be, we'll subtract both these votes and we'll get the answer as 2,28,800. In this question number 4, it is said that Kirti Book Store has sold the books worth rupees 2,85,891. Means Kirti Book Store कितने books means sale करता है, कितने cost की? 2,85,891 की बुक्स को वो सेल कर देता है इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून. एंड बुक वर्थ रुपीज 4,768 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ. जून में वो सेल करता है कुछ वर्थ अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ बुक्स का, एंड जबकि इन द नेक्स्ट मंथ में वो कुछ और सेल कर देता है नंबर ऑफ बुक्स जिसकी कॉस्ट है वर्थ which cost about 4,768. So how much was the sale for the 2 weeks together? And in which week was the sale greater and by how much? So पहले तो 2 weeks together का हम find out करेंगे. Okay, by adding these two, whatever the amount he got, and उसके बाद to find out which week was the greater sale, उसके लिए हम find out करेंगे इसको by subtraction. So let's see the solution part of this question. Now let's see the solution. In the first week of June, the books were 2,85,891. In the second week,
it will be 4,0768. So therefore the total sale together will be the sum of this, which is 6,86,659. Now in which week or in the which month the sale was greater, we'll take the difference and we got 1,14,877. So in the second week of June the sale of the books was more, and by how much? It was 1,14,877. Question number 5. We have to find the difference between the greatest and the least number, which can be formed by using the digits 6, 2, 7, 4, 3, and each has to be used only once. What is the meaning of this question? We have to make the number, and what type of number? The greatest number and the least number by using these given digits only. So the greatest number which can be formed by using these digits will be, this will be, as the digits are 6, 2, 7, 4, 3. So which is the greatest? इनमें से सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 7 है. तो 7 नेक्स्ट उसके बाद डिजिट आएगी 6, देन डिजिट आएगी 4, then 3, then 2. So this is the greatest number. Now how to form the smallest number? इन्हीं digits को हम reverse order में लिख देंगे. So we can find the smallest number by using the given digits. So the smallest number will be, the reverse orders में क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 2, 3, 4 and 6, 7. So this is the smallest number. Now we have to find the difference between the number. So to find the difference, we have to just we have to do the subtraction. The subtraction will be 7, 6, 4, 3, 2 minus 2, 3, 4, 6, 7. So the answer will be 5, 2, 9, 6, 5. So this was the answer. This question, a machine on an average manufactures 2825 screw a day. A day means एक दिन में manufacture करती है 2825 in a day, in one day. So how many screws, कितने number of screws वो produce करेगी in the month of January. So total number of screw in the month of January means January में total days कितने होते हैं? 31. So one day में करती है 2825, तो 31 days में करेगी 31 into 2825. So now let's see the solution. Number of screws manufactured in a day is 2825. Screws manufactured in the month of January, 31 multiplied by 2825. We get the answer as 7,575. This question, a merchant had rupees 78,592. Means उसके पास total amount है 78,592 का. She placed an order for purchasing 40 radio sets. और उसने एक order place किया है 40 radio sets को purchase करने का, with the condition that one radio set की cost कितनी है? 1200. क्वेश्चन को फिर से देखते हैं. She placed an order for purchasing 40 radio sets. 40 radio sets, number of radio sets उसको खरीदने हैं 40, और cost of one radio set कितनी है? 1200, क्योंकि each लिखा है 1200 each. ओके, सो वन रेडियो सेट की कॉस्ट है 1200, तो 40 की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 40 into 1200 एंड इट विल गिव यू 12 4 48, 48,000 उसके पास अमाउंट हो जाएगा जब वो परचेज कर लेगी, इतना परचेज कर लेगी. सो हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, हाउ मच मनी विल बी रिमेन आफ्टर द परचेज. सो आप ये देख सकते हो 78,592, ये तो टोटल अमाउंट है जिसमें से वो खर्चा कर लेगी 40 रेडियो सेट्स को परचेज करने का, जिसमें एक रेडियो सेट की कॉस्ट है 1200. So let's move to the working part of this question. Now the amount of money which the merchant had, this was 78,592, and the number of radio sets to be purchased is 40. Price of 40 radio sets will be then for 1200, as the price of one radio set is 1200, therefore the cost of 40 radio sets will be 40 into 1200, and this is going to give you 48,000. Therefore the remaining amount which the merchant will be the total cost, which is 78,592 minus 48,000.
and this is going to give you 30,592. Hence, the amount which is to be left is 30,592, and this will remain with the merchant. In this question, the student has multiplied 7,236 by 65. उसने क्या किया था कि 65 से मल्टीप्लाई कर दिया था 7,236 को, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय 56. उसको 56 से मल्टीप्लाई करना था, बट बाय मिस्टेक उसने 65 से 7,236 को मल्टीप्लाई किया. सो कुछ तो एरर उसके आंसर में आएगा ही. सो व्हाट वाज द आंसर एंड बाय हाउ मच हिज आंसर वाज ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर के लिए उसको चाहिए था 56 से मल्टीप्लाई, बट बाय मिस्टेक उसने 65 से मल्टीप्लाई किया. सो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन पार्ट. सो द स्टूडेंट हैज मल्टीप्लाइड द नंबर 7236 by 65 instead of multiplying it with the number 56, which is 56. So difference between the numbers, we will get it by multiplying 7236 by 65 and 7236 by 56. So 65 into 7236 minus 56 into 7236 gives you the final answer as 65,124. So this was the solution. Now let's see the next question. To stitch a shirt, किसी भी शर्ट को स्टिच करने के लिए कितने मीटर ऑफ क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर. सो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है किसी भी शर्ट को स्टिच करने के लिए. टोटल मीटर ऑफ क्लॉथ कितना है? 40 मीटर. यानी कि आउट ऑफ 40 मीटर ऑफ क्लॉथ, जो कि टोटल मीटर ऑफ क्लॉथ अभी है 40 मीटर, उसमें से हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड. यानी 40 मीटर क्लॉथ से हम कितनी शर्ट्स को निकाल सकते हैं और कितना क्लॉथ फिर उसके बाद रिमेन बच जाता है. ठीक है, रिमेन हो जाता है. हाउ मच क्लॉथ विल बी रिमेन देयर. नाउ वी विल सी द टोटल लेंथ ऑफ अ क्लॉथ. सो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ अ क्लॉथ? दिस इज, यू चेक, दिस इज गिवन इन मीटर. सो टोटल लेंथ इज, this is equals to 40 meter. So 40 meter, this has to be converted into centimeter. Why? क्योंकि शर्ट जो हमारे पास है वो मीटर और सेंटीमीटर में है. So easy होने के लिए, to make the question easy, हम इसको 40 मीटर को 40 में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, because 1 meter equals to 100 centimeter. So this turned as 4,000. This becomes as 4,000 centimeter. Okay, so this was the total length of the cloth. Now the length of the shirt, what is the requirement for the length of the shirt? So length of the shirt is again we will write the same unit. What is given as, this length is given as 2 meter 15 सेंटीमीटर. Now 2 meter 15 सेंटीमीटर, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में पूरा. ठीक है, तो 2 मीटर मतलब 2 into 100 सेंटीमीटर. दिस बिकम्स एज सेंटीमीटर. इसमें एक्स्ट्रा लेंथ हमारे पास कितनी है? एक्स्ट्रा लेंथ हमारे पास है 2 मीटर. वो क्या सेंटीमीटर में एक्स्ट्रा कितना है? 15 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा है. सो टोटल लेंथ कितनी हो जाती है? 215 सेंटीमीटर. ओके, दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द शर्ट. ये भी हमारे पास सेंटीमीटर में हो गया है, एंड ये हमारा जो टोटल क्लॉथ का लेंथ था ये भी हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया. ओके, सो नाउ अब हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ शर्ट्स स्टिच करेंगे और कितनी बचती हैं. तो आप क्या करेंगे इसके लिए? अब हम करेंगे डिवीजन. Therefore, the number of shirts to be stitched will get the answer by dividing 4,000 to 250, and the number of shirts stitched is 18, and the remaining cloth will be 130 centimeter. So 130 centimeter is again reduced or written in the form of 1 meter 30 centimeter. So I have, in the next slide I have done the division also. You can check the division and get the answer. So let me tell you once again कि how you just have got it, like हम इसको division ही क्यों करेंगे. So now let me show you कि इसका division ही क्यों करेंगे हम. You see, क्योंकि अगर हम आपको एक फिगर बना के दिखाते हैं, if I am making a shape बना लेते हैं. Suppose I have made a cloth here. This is suppose 40 meter of cloth.
सो ये 40 मीटर ऑफ क्लॉथ है, इसको हमें डिवाइड करना है नंबर ऑफ शर्ट्स में। ओके, सो नंबर ऑफ शर्ट्स में डिवाइड करना है मीन्स हमको इस क्लॉथ से शर्ट्स को निकालना है। सो अगर हम ये सपोज करते हैं इतने करते हैं पार्टीशन करना है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का। सो ठीक है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर करना। सपोज कीजिए मैं अभी एक एग्जांपल लेती हूँ, मैंने इसको लगभग 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट मीन्स हमें फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट मैंने ले लिया है क्लॉथ बनने का। बाकी रिमेनिंग पोर्शन जो बिगर पोर्शन आप देख रहे हो ये मेरा पोर्शन बिगर पोर्शन विच इज द रिमेनिंग वन। सो इसी तरह से करना है। 40 मीटर क्लॉथ था, इसमें से अगर मैंने अभी एग्जांपल में 2 मीटर 2 पार्ट्स लिए हैं, सो इसमें जो लेंथ ऑफ शर्ट लेनी है, एक शर्ट का लेंथ है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। कितने नंबर ऑफ पार्ट्स मिल जाएगा, वो नंबर ऑफ पार्ट्स के लिए हमने क्या किया, जो हमारा टोटल लेंथ था 4000 सेंटीमीटर क्लॉथ का, उसको 25 से डिवाइड किया, क्योंकि हमें डिवीजन पॉइंट फाइंड आउट करना है कि हम इस शर्ट कपड़े को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो डिवाइड करना है, इसलिए हमने यहाँ डिवीजन किया था और आंसर आ गया था कि 18 शर्ट्स हमें मिल जाती हैं, जिसमें से रिमेनिंग क्लॉथ कितना था आपका 130 सेंटीमीटर था। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस, यानी कि बॉक्सेस में हमने मेडिसिन को पैक्ड किया हुआ है और ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम, मीन्स वन बॉक्स का वेट कितना है 4 kg 500 ग्राम्स। ओके, सो हाउ मेनी बॉक्सेस, तो पूछ रहे हैं कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी वेट बियॉन्ड 800 kg। मीन्स अगर हम ये आपको बताएंगे कि एक वैन है जो वैन कैरी कर सकती है कितना ज़्यादा से ज़्यादा वेट 800 किलोग्राम्स तक। ठीक है, 800 किलोग्राम तक वेट कैरी कर सकती है, जिसमें हमें ये पता करना है कि उस वैन में कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस आ सकते हैं, जहाँ पे ये पता है कि एक बॉक्स का वेट कितना है 4 kg 500 grams. So now let's see the working part of this question. I have taken a van here. Okay, so this is a van and here the number of boxes are here. So मैंने क्या किया कि एक बॉक्स को सपोज कीजिए इसमें लोड कर दिया, देन सेकेंड बॉक्स को भी लोड कर दिया, थर्ड बॉक्स को भी लोड कर दिया, फिफ्थ बॉक्स को भी मैं लोड कर देती हूँ, सिक्स्थ बॉक्स को भी लोड कर देती हूँ एंड सेवेंथ बॉक्स को भी मैं लोड कर देती हूँ। यहाँ पे तो मुझे नंबर ऑफ बॉक्सेस पता है 7, लेकिन इन क्वेश्चन वी डोंट नो हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर। सो व्हाट आई हैव अज्यूम्ड हियर, आई हैव टेकन नंबर ऑफ बॉक्सेस एज n. सो वन बॉक्स का वेट कितना है 4 kg 500 ग्राम्स और टोटल कैपेसिटी या एक वैन जो है ये कितने वेट को कैरी कर सकती है 800 ग्राम्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट्स को सेम करो, यहाँ पे देखेंगे एक क्वांटिटी है आपकी 4 kg 500 ग्राम्स और सेकेंड क्वांटिटी आपकी किलोग्राम्स में। सो पहले हम किलोग्राम्स को वेट ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लेट्स सी इसका वर्किंग पार्ट हम एक कन्वर्जन यहाँ पे कर देते हैं तो ग्राम में। तो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, सो 4 kg इक्वल्स टू 4 into 1000 ग्राम, ये ग्राम हो गया आपका। ठीक है, ग्राम हो गया। एक्स्ट्रा यहाँ पे कितने ग्राम्स आपका ऑलरेडी है इसके आगे 500, सो 500 ग्राम इसमें ऐड हो जाएगा और ये टोटल हमको कितना ग्राम मिल जाएगा 4000 प्लस 500, दिस इज गोइंग टू गिव यू 4500, दैट मीन्स 4500 ग्राम्स। ओके, नाउ टोटल कैपेसिटी कितनी है 800 ग्राम। सो इसको हम वैसे समझते हैं कि 800 टोटल है, तो टोटल कैपेसिटी जो है 800 वो हमें कैसे मिल सकती है, वन बॉक्स की कॉस्ट, वन बॉक्स का वेट है 4500 ग्राम। ठीक है, वन बॉक्स का ये है। टोटल बॉक्सेस हम कितने ले रहे हैं n बॉक्स, तो n बॉक्स के लिए क्या हो जाएगा 4500 इंटू n क्या है नंबर ऑफ बॉक्सेस जो कि आएंगे। यहाँ एग्जाम्पल पे हमने जो ब्लू बॉक्सेस लिए हैं वो 7 लिए हैं, बट इन द क्वेश्चन वी डोंट नो द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो हमने क्या किया कि वन बॉक्स का जो वेट था 4500 ग्राम, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ बॉक्सेस जो कि n ले रहे हैं, और यही टोटल कितना किलोग्राम है, ये किलोग्राम है आपका 800 किलोग्राम। तो 800 किलोग्राम को भी हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसके आगे हम 1000 से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हो गया ग्राम में। तो बोथ द क्वांटिटीज आर सेम, सो n। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस के लिए हमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉक्सेस के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे, मीन्स हम डिवाइड करेंगे 8 lakhs को 1 2 3 4 5 zeros आ जाएंगे, इसको हमें डिवाइड करना है किससे 4500 से। सो वंस यू डिवाइड इट यू विल गेट योर आंसर एज
177 boxes. Okay, 177 boxes. So this is the answer. So इसका मैं आपको ये शो कर देती हूँ कि कैसे हमने डिवीजन किया है. So मैं आपको थोड़ा सा डिवीजन पार्ट भी दिखा देती हूँ. So this is the division part. 4500 को 8 लाख से डिवाइड किया तो 177 क्वोशंट आता है. यही इसका नंबर ऑफ बॉक्सेस है. सो इन दिस वे नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने के लिए हमने यही किया. टोटल कितने बॉक्सेस कंटेन कर सकते, कितने ग्राम्स तक का, 8 लाख ग्राम जो कि 800 kg था उसको ग्राम में चेंज किया और n इंटू 1 बॉक्स का जो वेट था 4500 उसे मल्टीप्लाई किया और we have got the number of boxes. Now let's move to the next question. Here the distance between the school and the house, यानी कि स्कूल और हाउस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1 किलोमीटर 875 मीटर. ठीक है, यहाँ देखेंगे फिर से यूनिट्स हमारे किलोमीटर और मीटर दोनों में है. ठीक है, सो डिस्टेंस स्कूल और हाउस का क्या है 1 किलोमीटर 875. एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज. सो देर इज अ गर्ल जो कि बोथ वेज मतलब वॉकिंग करती है, एक बार जाती है एक बार आती है, यानी कि डबल डिस्टेंस कवर कर रही है. सो एक जो डिस्टेंस है हाउस से घर का, स्कूल से हाउस का, वो है 1 किलोमीटर 875. सो बोथ वेज जाएगी यानी कि 2 टाइम्स कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 किलोमीटर 875 मीटर को. तो पहले तो हम यूनिट्स को सेम कर लेते हैं, किलोमीटर और मीटर में है. सो मीटर में कन्वर्ट कर लेना आसान रहेगा. सो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू मीटर. 1 किलोमीटर मीन्स 1000 meters. So 1000 में 875 एड अप कर लेंगे तो 1875 मीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा. डबल जाने में क्या करेंगे 1875 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो वो तो हो जाएगा इसका डबल डिस्टेंस जो कवर करेगी. हमको आगे क्या फाइंड करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड फर्दर, वी हैव टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days. सो ये तो 1 डे का हमें पता है 1 किलोमीटर 875 जाती है और वो डबल जाती है. ठीक है, सो 6 डेज में कितना जाएगी, सो 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा. सो नाउ लेट्स सी द वर्किंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो. लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. A vessel has 4 liters and 500 milliliter of curd. ठीक है, एक वेसल जो है वो कितना कर्ड कंटेन कर सकता है 4 लीटर 500 ml. यहाँ पे भी देखेंगे यूनिट्स डिफरेंट यूज हो रही है. 4 लीटर 500 ml कंबाइंड यूनिट यूज हो रही है. सो कितने ग्लासेस फिल कर सकते हैं, नंबर ऑफ ग्लासेस फाइंड करना है जिसमें एक ग्लास की कैपेसिटी कितनी है 25 मिलीलीटर्स, यानी 1 ग्लास कितना कर्ड होल्ड कर सकता है 25 मिलीलीटर. हमें पता करना है कितने नंबर ऑफ ग्लासेस हम इस 4 लीटर 500 ml ऑफ कैपेसिटी के का जो वेसल है उससे भर सकते हैं, यानी कि कितने ग्लासेस हम भर सकते हैं, नंबर ऑफ ग्लासेस हमें फाइंड करना है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वर्किंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. So now the quantity of the curd that can be held in a vessel is how much 4 liter 500 ml. इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मिलीलीटर्स में, 4 into 1000 कर देंगे क्योंकि 1 लीटर है इसको 1000 मिलीलीटर. 4 into 1000 plus 500 ml, this will give you 4000 plus 500, that means 4500 ml कैपेसिटी हो गई कंटेनर की. Now capacity of 1 glass कितना है 25 ml. So therefore the number of glasses to be filled is how much 4500 divided by 25, this is gives you 180. ये कैसे फाइंड किया था, 1 ग्लास इंटू नंबर ऑफ ग्लासेस को n लिया जो कि टोटल कैपेसिटी थी और 1 ग्लास 25 ml का था, नंबर ऑफ ग्लासेस n है, टोटल कैपेसिटी है 4500 ml. सो नंबर ऑफ ग्लासेस कैसे मिल जाएगा, 25 हमारा 4500 से डिवाइड हो जाएगा and it will give you 180. So number of glasses to be filled is 180 ml. So I hope all the questions were clear to you. Thank you to all of you. If there are any question or doubts related to this exercise, you can comment me in the comment box. I would always be ready to help you out. Thank you to everyone.